1, 2, 3, come on. Come on, come on. 1, 2, 3, come on. Come on, come on. My name is Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Please like, share, and subscribe my channel for more videos, educational videos of Standard 9th NCRT syllabus. Okay, so today what we are going to see is exercise 5.2 of R.D. Sharma. There are altogether 24 sums. All of them are easy based on your identities of chapter polynomials. So, very first sum, title says that factorize each of the following expression. उसमें जो first है वो है p cube plus 27. As you can see, this is nothing but can I write it like this? P का whole cube plus 3 का whole cube. And you know the identity. What is your identity? A cube plus B cube is equals to A plus B. A square minus AB plus B square. So what will be your answer? P plus 3. P square minus 3P plus 9. This is your answer to sum number 1. Moving forward, sum number 2 says that y cube plus 125. Y cube plus 125. So this can be written as y ka cube plus phi ka cube. Now I am not writing identity because it will be the same identity. So your final answer is y plus phi, y square minus 5y plus phi ka square is 25. Sum number 3 is 1 minus 27a cube. Now this can be written as 1 ka cube minus 3a ka whole cube. Now identity it is a cube minus b cube, which is nothing but a minus b, a square plus ab plus b square. Now what is your a over here? Our a is 1 and what is b? 3a, and 1 का square 1 plus 3a multiplication और ये हो गया आपका 9a का square. Then moving forward, sum number 4 which says that 8x cube y cube plus 27a cube. Okay students, this is same. Can I write it like this? 2xy का whole cube plus 3a का whole cube, a cube plus b cube. I will not write identity but you all have to write it. So 2xy plus 3a एक ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर होगा तो ये होगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2 3 6 माइनस की साइन xy और axy, एंड लास्ट में 3a का स्क्वायर तो 9a स्क्वायर. ओके, सम नंबर 5 which is also very simple, 64a cube minus b cube. 64a cube minus b cube. This can be written as 4a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब. आइडेंटिटी ये रही, आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा. 4a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में 4a का स्क्वायर है 16a स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4ab और इसका स्क्वायर तो b स्क्वायर. सो दिस आर योर 5 sums. As I have told you, there are major 24 sums only, जिसमें से हम लोगों ने already we have completed 5 sums. Moving forward towards your sum number 6, which is also of the same type. 6th number says that x cube upon 216 minus 8y cube. Okay, now if you can see, this can be written as x upon 6 का whole cube minus 2y का whole cube, and your final answer is x by 6 minus 2y. x square upon 36, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस है तो प्लस आ जाएगा. 2xy upon 6 प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर. अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है, जहाँ पे कट हो सकता है वहाँ पे करो. 2 1 2 3 सो योर फाइनल आंसर इज x by 6 minus 2y, x square by 36 plus xy upon 3 plus 4y square. Moving forward, sum number 7.
10x raised to 4y, 10x raised to 4y minus 10xy raised to 4. देखो कॉमन क्या है, पहले कॉमन निकाल लेंगे ना, तो 10x और y में कॉमन निकाल देता हूं, तो अंदर के ब्रैकेट में जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब, एंड दिस इज स्ट्रेट अवे योर आइडेंटिटी x माइनस y, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, सो दैट इज योर सम नंबर 10. आप लोगों को हर एक सम में आइडेंटिटी लिखना इज कंपल्सरी. अगर आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर सम नंबर 8 which says that 54 x raised to 6 y plus 2x cube and y raised to 4. तो अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कॉमन निकलेगा 2x क्यूब और यहां से y अंदर जाएगा 27x क्यूब. ओके, एंड यहां पे आएगा ओनली y क्यूब. नाउ यू कैन राइट इट 2x क्यूब इंटू y. ठीक है, अंदर जाएगा. ठीक है, क्या अंदर जाएगा, ये ऐसा लिख सकता हूं 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब. So your final answer is 2x cube y, 3x plus y and 9x square minus 3xy plus y square. Moving forward, sum number 9 which says that 32a cube plus 108 b cube. अब आप लोगों का कॉमन क्या निकलेगा, अगर 2 कॉमन निकालेंगे बराबर है, 2 कॉमन निकालने से कुछ नहीं होगा, 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो 8a क्यूब और यहां पे आपका आ जाएगा देखिए, तो 4 में कॉमन निकालता हूं तो 8a क्यूब और 108 डिवाइड बाय आप लोग जब 4 करोगे तो इट इज नथिंग बट योर 27. ठीक है, 27b क्यूब. ठीक है, अब आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट आंसर एज सिंपल एज दिस. इफ यू कैन सी 4 कॉमन है, यहां से मैं ऐसा लिखूंगा 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब एंड योर फाइनल आंसर इज 4 इंटू 2a प्लस 3b, दूसरे ब्रैकेट में 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस की साइन 2 3 6ab और 3b का स्क्वायर होगा 9b स्क्वायर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एडजस्टमेंट्स. सम नंबर 10 which says that a minus 2b का होल क्यूब माइनस 512b क्यूब. अब देखो इसको मैं क्या करने वाला हूं, लेट a माइनस 2b इज इक्वल्स टू m. ओके, तो ये हो गया m क्यूब माइनस 512b क्यूब. अब इसको मैं लिखूंगा m होल क्यूब माइनस 8b का होल क्यूब. ओके, देन व्हाट, m माइनस 8b m स्क्वायर plus 8mb plus 64b square. Now substituting the value of m. So a minus 2b minus 8b और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा a minus 2b का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू a minus 2b इंटू b प्लस 64b स्क्वायर. अब देखो ये 8 minus 2b minus 8b तो वो हो जाएगा 10b. दूसरे ब्रैकेट में अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर. देन ये यहाँ पे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8a प्लस 8a माइनस 16b इंटू b प्लस 64b स्क्वायर. ठीक है, अब ध्यान से देखना, a माइनस 10b तो एज इट इज है ही. अब इसको भी मल्टीप्लीकेशन के लिए ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 16b स्क्वायर प्लस 64b स्क्वायर. ठीक है,
ये है आपका सेकंड ब्रैकेट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और अच्छे से लिखेंगे। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है, 4ab और 8ab, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4ab, ठीक है। अब देखो 4 minus 16 minus 12 plus 64, so it is nothing but 52b square, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। 64 minus 16 48, 48 and 4, that is nothing but 52b square. So that is your sum number 10. All the students mark well. There are altogether 24 sums, जिसमें से हम लोगों ने 10 sums देख लिए हैं बच्चों। Moving forward towards sum number 11, which says that 8x square y cube minus x raised to 5. अब कॉमन निकलेगा क्या, x square कॉमन, 8y cube minus x cube। अब जब ये निकलेगा तो हम लोग बहुत ही सिंपल वे से करेंगे, 2y का होल क्यूब माइनस x का होल क्यूब। आइडेंटिटी में आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो योर फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर कॉमन, 2y माइनस x, सेकंड ब्रैकेट में जाएगा 4y स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2xy, और ये हो गया x square. So this is your answer to sum number 11. Moving forward, sum number 12, which says that 1029 minus 3x cube. जब ये हम लोग लिखते हैं तो देखो यहाँ से पता चलेगा कि 3 कॉमन है। 3 अगर कॉमन हो गया तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप लोगों का 3 कितने सा 1029 आएगा वो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। तो 343 सा, ओके, 1029 माइनस यहाँ से x क्यूब। अगेन दिस इज नथिंग बट योर a क्यूब माइनस b क्यूब। कैसे हो जाएगा, देखो 3 into 7 का क्यूब माइनस x का क्यूब, और फिर हम लोग लिखेंगे 7 माइनस x, नेक्स्ट ब्रैकेट 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7x और इसका स्क्वायर x स्क्वायर। सम नंबर 13 देखिए बच्चों, तो which is x cube y cube plus 1, x cube y cube plus 1। दिस इज वेरी सिंपल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x y का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ओके। नाउ व्हाट, आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, a क्यूब प्लस b क्यूब which is nothing but a plus b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे a क्या हो गया आपका xy और b हो गया 1, यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का स्क्वायर माइनस xy, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 1 का स्क्वायर इज 1। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। Moving forward, we are going to see your sum number 14, which says that x4 y4 minus xy। चलो ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ से पहली चीज कॉमन क्या निकलेगी, तो भाई xy कॉमन, अंदर क्या जाएगा x क्यूब y क्यूब माइनस 1। नाउ व्हाट, xy तो है ही, इसको मैं क्या लिखूंगा, xy का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, ओके। अगेन ये जैसा ही है, आइडेंटिटी ये वाली ये लगेगी, तो मैं आइडेंटिटी अब नहीं लिखूंगा। ये हो गया xy माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy प्लस 1। So the final answer is xy minus 1, x square y square plus xy plus 1. So this is your answer to sum number 14. Moving forward, sum number 15 says that a cube plus b cube plus a plus b. ये देखना ध्यान से, a cube plus b cube plus a plus b। अब देखो, this you all know, a cube plus b cube आइडेंटिटी है a plus b, a square minus ab plus b square, और यहाँ से मैं ऐसे एक ब्रैकेट कर देता हूँ a plus b। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, यहाँ से कॉमन निकला a plus b, और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा a square minus ab plus b square। यहाँ पे क्या आएगा आगे, obviously 1, तो plus 1। So this is your answer to sum number 15. And moving forward, 16th says that simplify, और उसके 3 पार्ट हैं, 3 मेजर 16th के 3 सम हैं। वेरी फर्स्ट सम, उसमें देखिए ऐसा है 173 into 173 into 173
प्लस ऐसा दिया है 127 इंटू 127 इंटू 127 और नीचे ऐसा लिखा है 173 इंटू 173 माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 इंटू 127 ऐसा कुछ लिखा है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे हम लोगों ने एसएसएम्स ऑलरेडी आरएस अग्रवाल में देखे हैं तो सेम वे इसको भी हम लोग करेंगे। देखो ये हो जाएगा आप लोगों का पहला टर्म, इसको मैं ऐसा लिखूंगा 173 का होल क्यूब प्लस 127 का होल क्यूब और नीचे देखो नीचे ये है 173 का होल स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 और यहाँ पे आएगा प्लस 127 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैं लिखूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब है तो आइडेंटिटी आएगी 173 प्लस 127 173 का स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है, नीचे पूरे में ऐसा है कि 173 होल स्क्वायर माइनस 173 इंटू 127 प्लस 127 का होल स्क्वायर। This and this gets cancelled. तो 173 plus 127 बचा तो 3 and 7 0, 7 and 2 9 and 1 0, 1 and 1 2 and 300 is your answer for sum number 16th का first. Moving forward to 16th का second, which says that 155 into 155 into 155 minus 55 into 55 into 55 whole upon यहाँ पे लिखा है 155 into 155 plus 155 into 55 and plus 55 into 55. Now this is also very simple, same type ही है, सिर्फ माइनस प्लस का सम है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, can I write it like this? 155 cube minus 55 cube upon 155 का स्क्वायर plus 155 into 55 and plus 55 का स्क्वायर। As you know, a cube minus b cube, a cube minus b cube क्या आएगा आप लोगों का? a minus b a square plus ab plus b का स्क्वायर होल अपॉन यही है 155 स्क्वायर प्लस 155 into 55 plus 55 का स्क्वायर। तो this two gets cancelled. So 155 minus 55 बचा, which is nothing but your answer is 100. So these are your 16 sums. अभी भी 16 में थर्ड बाकी है बच्चों। Moving forward, 16 का third sum which says that 1.2 into 1.2 into 1.2 minus 0.2 into 0.2 into 0.2 upon 1.2 into 1.2 plus 1.2 into 0.2 plus 0.2 into 0.2 which is nothing but, can I write it like this, 1.2 का whole cube minus 0.2 का whole cube upon 1.2 का whole square plus 1.2 into 0.2 और ये हो गया 0.2 का whole square. Now you know a cube minus b cube is nothing but a minus b, a square plus ab plus b square. So आंसर आएगा 1.2 minus 0.2, 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 into 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर और नीचे का टर्म देखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज नथिंग बट 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 into 0.2 और ये है प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो ये गया 1.2 minus 0.2 is nothing but your answer is 1. So that is your 16th sum. Now moving forward, अब जो 17 से लेके 24 तक जो sums है वो सब जो है level 2 के हैं। तो 17th sum a plus b whole cube minus 8 into a minus b whole cube. Okay, now level 2 type है, let a plus b is equals to x and a minus b is equals to y. तो ये हो गया x cube minus 8y cube, ठीक है। एंड देन आइडेंटिटी तो है ही आपके पास, ये रही x माइनस या तो उसका x क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब ऐसा लिखो और फिर लिखो x माइनस 2 x स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो x क्या है, सब्स्टिट्यूट करते हैं a प्लस बी, और y क्या है a माइनस बी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो ब्रैकेट्स ओपनिंग, ब्रैकेट्स जब ओपन करेंगे तो a प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b ऐसा होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आता है। दूसरा ब्रैकेट देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आइडेंटिटी है। फिर a प्लस b a माइनस b क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन 2 को हम लोग ऐसे ही रखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और नेक्स्ट जो है a माइनस b होल स्क्वायर है उसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये 2ab गया, a माइनस 2a माइनस a b प्लस 2b 3b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये ओपन करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो माइनस a प्लस 3b, अब देखो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, वो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस सॉरी a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। So this is cancelled. So your final answer is 4a square minus a plus 3b. Moving forward towards your sum number 18, which is x plus 2 whole cube plus x minus 2 whole cube. X plus 2 whole cube plus x minus 2 whole cube. Again, let x plus 2 is equals to a and x minus 2 is equals to b. तो ये हो गया a cube plus b cube. Now you all know identity, it is nothing but a plus b, a square minus ab plus b square. चलो a की जगह पे वापस उसकी वैल्यू लिख देते हैं x plus 2, b की जगह पे लिखेंगे x minus 2। चलो x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस x plus 2 into x minus 2 प्लस x minus 2 का होल स्क्वायर। चलो 2 and 2 gets cancelled, x plus x ये 2x ये बाहर चला गया, x square plus 4x plus 4 a plus b होल स्क्वायर है माइनस ये है a plus b a minus b तो x square minus 4 प्लस ये हो गया x square minus 4x plus 4 क्योंकि ये है a minus b होल स्क्वायर। 4x भी चला गया, तो अब देखो 2x into x square plus 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर भी चला गया तो 2x, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बचा 4 4 और 4 तो वो बन गया 12। सो द फाइनल आंसर टू सम नंबर 18 इज नथिंग बट 2x into x square plus 12। मूविंग फॉरवर्ड अब कुछ से ही सब बाकी है बच्चों। Moving forward, sum number 19, x6 to the power, x to the power 6 plus y to the power 6, इसको हम लोग है ना ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर और उसका होल क्यूब प्लस y स्क्वायर और उसका होल क्यूब। अब ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, आइडेंटिटी आपके पास है ही, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो a है अपना x स्क्वायर और b है अपना y स्क्वायर। अब a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो योर आंसर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। सम नंबर 20 which says that a12 प्लस b12 मतलब a टू द पावर 12 प्लस b टू द पावर 12, इसको भी हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a टू द पावर 4 होल रेज टू 3 प्लस b टू द पावर 4 होल रेज टू 3। अगेन द सेम आइडेंटिटी, सो आंसर विल बी a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, a4 का स्क्वायर माइनस a4 b4 प्लस b4 का स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या आएगा a4 b4 प्लस यहाँ पे a रेज टू 8 माइनस a4 b4 प्लस b रेज टू 8। ठीक है, दिस इज योर आंसर टू सम नंबर 20। मूविंग फॉरवर्ड, सम नंबर 21 which says that x cube plus 6x square plus 12x plus 16, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, हाँ बच्चों, ये ऑलरेडी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में है, इसको हम लोग कैसे क्यूबिक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, देखो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्प्लिटिंग करूंगा। कैसे स्प्लिट करूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा एक्स क्यूब एज इट इज है। यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा 8x प्लस 4x प्लस 16। ठीक है, सिर्फ स्प्लिट किया है और कुछ नया नहीं किया है। फिर ये दो टर्म साथ में ले लेंगे, तो दो टर्म जब साथ में लेंगे तो मैं यहाँ से x स्क्वायर निकालूंगा कॉमन, और अंदर जाएगा x प्लस 4। यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा 2x, जिसमें अंदर जाएगा x प्लस 4, और यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा 4, तो उसका अंदर जाएगा x प्लस 4। सो अब कॉमन क्या है, तो भाई x प्लस 4 कॉमन है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दिस इज योर आंसर टू सम नंबर 21 बच्चों। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम नंबर 22 which says that a cube minus 1 upon a cube minus 2a plus 2 upon a। अब देखो इसको मैं कैसे लिखने वाला हूँ, a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब को एक ब्रैकेट में कर दिया, माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन, तो a माइनस 1 अपॉन a। अब देखो दिस इज नथिंग बट a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना a जो है वो a क्यूब है, तो a का a ही रहेगा, और यहाँ पे जो b है वो ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर a स्क्वायर प्लस a इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 1 अपॉन a। ये a गया, तो यो आंसर कैसा है, a माइनस 1 अपॉन a, फिर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 1। अब कॉमन क्या निकलेगा, a माइनस 1 अपॉन a इज कॉमन, अंदर जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 2। सो योर फाइनल आंसर इज a इंटू माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। सो दैट इज योर सम नंबर 22। मूविंग फॉरवर्ड, सम नंबर 23 which is very simple। देखिए a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 8। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैं रीअरेंज करने वाला हूँ। कैसे रीअरेंज करूंगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ऐसा लिखा है, और माइनस 8। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर आइडेंटिटी, a प्लस b होल क्यूब हो गया, और ये हो गया माइनस 8। इसको मैं ऐसे लिखूंगा a प्लस b होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ओके, सो नाउ a प्लस b माइनस 2, यहाँ पे से ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, देन a प्लस b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4। अब a प्लस b माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b प्लस 4। So this is your answer to sum number 23. Now only one sum remains बच्चों, and that is 24th. Sum number 24, last of your exercise 5.2 RD Sharma. So this is written as 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ऐसे लिख देंगे, और यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा 2x को, तो अंदर जाएगा 2a माइनस b। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी है आप लोगों के पास a क्यूब माइनस b क्यूब। सो a क्यूब माइनस b क्यूब इज नथिंग बट a माइनस b, a स्क्वायर प्लस 2a सॉरी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2a माइनस b, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2ab प्लस इसका b स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ से ये ऐसा है 2x इंटू 2a माइनस b। तो व्हाट इज कॉमन, तो 2a माइनस b इज कॉमन इन वन ब्रैकेट 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2x। So that's the end of your exercise 5.2. Please like, share, comment and subscribe on my channel. Please subscribe more and more. Thank you very much, students.